Yes, am I audible to everyone? Yes, no, maybe. Okay. So, see, this is the sample data I have populated. Okay. So, this is returning you a list of employees, correct? So, as we had discussed, streaming API is collection pro max. So, where collection ends, streaming API starts. So, if you are planning to learn streaming API, you should have a good idea of collections first. So what is this method doing? Get employee list is giving me a list of employees. So what is an employee class? Employee is a class over here. So it is having all these attributes. What are the attributes of the employee? Okay, and with that it is also having a single address also. Address is a class. If you see over here, right? So each employee has an address. So and what is the address having? House number, street, city, pin code, right? And setter getter. And along with that, each employee is also having what? List of projects he has worked in. So what is a project also is a class over here then, right? The project is a class. What is the project having? Okay. So when I create a employee, I have to pass all these six, seven things. His name. Okay. This is his employee number. This is his name. This is his age. This is his gender. This is his department. This is his year of joining. This is his salary. Okay. And what is this then new what is this new address? Each employee has one single address, no? So that's why I passed one address object over here. And each employee has how many projects? One project or multiple projects, right? So project I am passing as, so I make these five projects over here, random projects. And now I'll pass employee June that he has worked in project P1 and P2. So this is a list, array list, sort of array list I'm passing over here. Which project has June worked in? Alpha, beta. And what was the budget of alpha? What was the budget of beta? Okay, this is the budget. And this is the status. So alpha was completed, beta was completed, gamma, apple, mango are in progress. Okay, so like this, I made around 12 employees and I returned that list. So wherever I want to fetch that list, I can fetch it. So if I right click over here and new, make a class et fsd 001 stream driver. Now I want to fetch all these over in this class. How will I fetch it? Any idea? Look at this class. Look at this class and look at this method. So I should make employee repository object and then call this method, right? Or is there any other faster way? Yes, absolutely correct. So as it is, there it is not accessing any instance variable. No, are there any instance variable over here? So if it is not accessing an instance variable, we can make it static and directly call it with the class name. So I say employee repository over here, and what will it give me? What type of data will this give me? List of employee, right? So I will have a list of employee ready over here by some name employees, and I will call it as employee repository
employee repository dot get employee list, and it gives me the list. If I sys out employees, it gives me that list, and if I run this code, I'm able to see the list. Okay, this list I have. Now from this list, I want you to display me all the names of the employees. Display the names of all employees. So now we have two style. Let's first do the imperative style of programming. That is how it is to be done, right? How it is to be done. So then it says first you take the employee list, step one done. Now you want to store all the names in an array list, correct? Okay. So you will take another empty array list of strings. The name will be in string, and then you will iterate through the collection and take one employee object. Employee, right? And then to this emp names, you will add the employee dot get name, and then once you have that, okay, and then I want you to display them also. So once you have the employee name, I want you to display them all at once. So you will take another for loop which will take a string, an employee name, okay, from employee names, and you will sys out emp name. Yes or no? These are all the employee names. June, May, November, December, these 12 employees are there. Correct? So everything step by step we had done. Okay. First step one, fetch the data. Step two, iterate through the data. Okay. Step two was declare the resultant array list. Declare empty array list to store the result. Third step, iterate through the array list or iterate through the data. Fourth step, store all the names in the array list
Step 5, iterate over the array list through the array list. And step 6 क्या है? Display each array list element. यही है. ओके, अगर अभी मैं आपको बोलता हूँ कि मुझे सिर्फ आईटी डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज के नाम निकालने दो. डिस्प्ले ईच array list एलिमेंट. तो ये कौन सा स्टाइल हो गया प्रोग्रामिंग का? फंक्शनल का इम्पेरेटिव. इम्पेरेटिव स्टाइल, ठीक है, होगा. सिलेबस में इम्पेरेटिव स्टाइल ही पढ़ाया जा रहा है. और क्योंकि उनका आउटपुट से कंसर्न है, कॉलेज का आउटपुट से कंसर्न है, आउटपुट से, परफॉर्मेंस का कोई रिलेशन नहीं है कॉलेज के प्रोग्रामिंग से. नो कॉलेज टीचर विल टेल यू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस. ओके. तो अब यहाँ पर अगर हम देखते हैं कि सिस आउट करते हैं, सिस आउट नहीं करूंगा मैं. लॉन्ग. ओके. स्टार्ट टाइम इक्वल टू सिस्टम डॉट करंट टाइम मिलीज. क्या है? करंट टाइम मिली सेकेंड्स में कितना है, वो हो गया स्टार्ट टाइम. और जब ये टास्क खत्म होगा तो एंड टाइम. और फिर हम सिस आउट करेंगे कि कितना टाइम लगा. क्या कर देंगे फिर हम लोग सिस आउट? एंड टाइम माइनस स्टार्ट टाइम. तो ये पूरा टास्क होने में कितनी देर लगी वो इतने सेकेंड बता देगा. मिली सेकेंड. कितने मिली सेकेंड लगे आपका टास्क पूरा करने में? कितने लगे? 2 मिली सेकेंड में इसने काम कर दिया. एक यहाँ दिखा रहा है 1 मिली सेकेंड, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द लोड. 8 मिली सेकेंड जैसे वो होता है, फ्लक्चुएट तकरीबन ऐसा दिखाता है. ठीक है, तो छोटा डेटा था इसके लिए फट से काम हो गया. अब जो है मुझे क्वेश्चन है, डिस्प्ले ऑल नेम्स ऑफ एम्प्लॉयज वर्किंग इन आईटी डिपार्टमेंट. अगला क्वेश्चन क्या है मेरा? वर्किंग इन. अब आप क्या करेंगे? अब आप पहले क्या करेंगे, एक एम्प्टी एरे लिस्ट बनाएंगे. एम्प्लॉय नेम्स आईटी डिपार्टमेंट. फिर आप लिस्ट को इटरेट करेंगे. ठीक है. और एक कंडीशन चेक करेंगे, इफ. क्या? इफ इफ एम्प्लॉय डॉट गेट डिपार्टमेंट, वो स्ट्रिंग है, डॉट इक्वल इग्नोर केस. है ना? अगर उसने वहाँ आईटी लिखा, तो अगर उसने वहाँ आईटी लिखा है या आईटी लिखा है, कुछ भी लिखा हो, तो मैंने क्या कर दिया, एक इक्वल इग्नोर केस. तो क्या करो फिर, उसको ऐड कर लो किसमें? इसमें वो नाम ऐड कर लो. फिर आप क्या करो, इसको इटरेट करेंगे हम लोग नाम दिखाने के लिए. इस, तो,
और एम्पियम दिखा देंगे। करेक्ट है ना? तो ये एक एक स्टेप अपने को करना पड़ रहा है। तो दिस मेक्स द कोड मोर रीडेबल एंड इजी टू अंडरस्टैंड। ओके, बिगिनर लोग के लिए ये कोड ज़्यादा रीडेबल है और ज़्यादा इजी टू अंडरस्टैंड लगता है। ये कहाँ से आए गरीब लोग। ठीक है, अब I'll put a marker over here. IT department employees सेव करते हैं। कौन कौन है आईटी डिपार्टमेंट में बताओ? जून है, नवंबर है, जनवरी है और फरवरी है। कौन कौन है? लेट्स चेक। आ गए? ओके। मेरे उस्ताद ने मेरे को ये सिखाया था कि ये जो है ना, गेट डिपार्टमेंट को पहले मत किया करो। अगर यहाँ पर नल रहा तो ये इशू क्रिएट कर देगा। देखो, अगर ये यहाँ पर हम गए तो कोई ना कोई एक डिपार्टमेंट नल रहा, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से ये पहला डिपार्टमेंट यहाँ पर नल डाल दिया। क्या डाल दिया आपने इसका? चलो, पहला नहीं, बाद में डालता है कि तुम लगे कि भाई चलो ये वाला डिपार्टमेंट नल डाल दो, ताकि वो इतना तो इटरेट किया ना उसने। 9 बार लूप चलिए, 10वीं बार में फंस गया वो। अब देखो यहाँ पर आएगा नल पॉइंटर एक्सेप्शन। क्या आएगा? तो 9 बार तो उसने लूप चला लिया, जब 10वीं बार भी वो आया तो उसका डिपार्टमेंट क्या है? 10वें एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट क्या है? नल है। नल से आपके फंक्शन कॉल कर सकते हैं। तो क्या दिखाएगा वो? तो ये कोड पर पक्का नल पॉइंटर एक्सेप्शन दिखाने वाला है, गारंटीड। आया? तो क्या करना था इसमें? थोड़ा सा वर्क अराउंड करेंगे। तो इसको ऐसा करना था, आईटी से कंपेयर करो। दिखने में थोड़ा सा सिली लगता है, ये मुझे भी लगा था सिली। समझ में आया? अब अगर नल रहा तो कंपेयर नहीं होगा, तो वो लेगा नहीं। तो अब आईटी वाले कितने हैं? 1 2 3 4। ये, चलो इसको अभी अपन इसको नल कर देते हैं। तो फेब्रुवरी आईटी में है क्या? तो विल इट डिस्प्ले हिज हर नेम? नहीं दिखाएगा ना? तो अब तुमको दिखाता हूँ मैं, सेव करके रन करते हैं। देखो फेब्रुवरी आया क्या? नहीं आया ना? और नल पॉइंटर सेक्शन भी नहीं आया ना? हाँ, तो ऐसा। तो ये हमारा हो गया इम्पेरेटिव स्टाइल ऑफ प्रोग्रामिंग। अब इसको फंक्शनल प्रोग्रामिंग में कैसे करते हैं? स्ट्रीम्स में कन्वर्ट करके। क्या करते हैं? स्ट्रीम। तो मैंने कुछ डॉक्यूमेंट तुम लोग बनाए हैं, दिख रहा है तुम लोग को ये? स्ट्रीम्स क्या करता है? उसको लाइन अप करता है। क्या करता है? अगर मेरे पास कोई अच्छा वीडियो है ना तो तुमको दिखाता हूँ, रुको। नेशनल ज्योग्राफिक के ऊपर ये एक वेब सीरीज है, मेगा फैक्ट्रीज। जो बड़े बड़े फैक्ट्रीज है ना जिन्होंने सेटअप किए हैं, उस पे दिखाते हैं। तो अभी देखो ये जो बॉटल्स बन रहे हैं, मुझे दिखाना है स्ट्रीम्स क्या होता है, क्या स्ट्रीम क्या होता है। अब देखो ये इतने बॉटल जमा हो गए, ठीक है ना? हेलो? अब ये क्या सारे बॉटल्स एक साथ जाते हैं क्या भरने के लिए? क्या क्या एक एक लाइन में जाते हैं? तो लाइन में प्रोसेस क्या होगा? पहले बॉटल फिल होगी, फिर इस पे रैपर लगेगा, फिर ढक्कन लगेगा, है ना? और वो ये अगर समझो ये 10,000 बॉटल्स है, तो 10,000 बॉटल्स को एक साथ लगेगा कि एक एक करके लगेगा? और अगर एक बॉटल अगर फिल हो गई
और वो आगे निकल गई तो फिर से नंबर आता है फिलिंग का उसका। तो उस अगर वो पास हो गई है स्टेप से तो आगे निकलने का, ठीक है। तो वो एक ही स्टेप से गुजरती है कि मल्टीपल स्टेप से गुजरती है? मल्टीपल स्टेप से गुजरती है, और लास्ट में उसका एक स्टेप होता है बॉक्स में आके पैक होना। लास्ट का स्टेप क्या है? बॉक्स में जाके वो लोग उसको पैक कर देंगे, है जो शॉपकीपर्स को सप्लाई करेंगे। तो ये जो इतने सारे डेटा है ना, ये अपना कलेक्शन है क्या ये? तो जो हमने बनाया ना ये कलेक्शन, समझ लो कि ये इतना रॉ डेटा है, ये जो हमने इधर बनाया ना ये पूरा। तो जब हम गेट लिस्ट कर रहे हैं तो ये हमको मिल रहा है ये पूरा कलेक्शन। तो स्ट्रीम्स लगते हैं कलेक्शंस के ऊपर। ये समझ में आ गया यहाँ तक? ओके। अब ये डेटा को एक एक करके देखो क्या कर रहे हैं वो लोग अभी। ये स्टेप बाय स्टेप लगा रहे हैं वो लोग। तो पहला स्टेप क्या हो रहा है? पहले वो लोग रैप कर, चलो ठीक है, इनका अलग लॉजिक रहेगा। पहले वो लोग रैपिंग कर रहे हैं। तो हर स्टेज में पहले रैपर लग गया। दूसरे स्टेज पे क्या होगा? फिलिंग हो रहा है, दिख रहा है? अब ये लोग एक एक करके जा रहे हैं ना। तो ये एक परफेक्ट एग्जांपल है स्ट्रीम का। ठीक है, अब ये एक एक करके वो ऑब्जेक्ट ये स्ट्रीम्स में स्टेप्स में गुजर रहे हैं। ठीक है। तो फर्स्ट लेवल पे पास हो गए लोग, तब सबको रैपर लग गए। ठीक है, और अभी आगे बढ़ते ही जा रहे हैं। फिर अब वो चेक कर रहे हैं इसमें कोई बैक्टीरिया तो नहीं है, स्कैन करके लेजर से गुजार के कोई फंगस फंगस तो नहीं है बॉटल के अंदर, ऐसा कुछ भी। ये इनको मत देखो, इनको टाइम पास। ठीक है, तो वो लोग स्कैन कर रहे हैं उसको। फिर जब वो हो गया तो अभी वो लोग फिलिंग पे आ गए। कौन से स्टेज पे आ गए अभी? फिलिंग। तो फिलिंग फिलिंग का स्टेज होगा। फिलिंग के स्टेज के बाद में जब फिलिंग पूरा हो जाए तो बॉटलिंग का कैप होगा, राइट? ठीक है, वो जो फिलर निकल गया, अब कैप लग गए। अब कैप लगने के बाद में जो एक फाइनल स्टेज आएगा, उनको देखो उठा के डाल देंगे कंटेनर में, और ये हो गया इनका फाइनल स्टेज। ऐसा ही कैन का काम होता है। ठीक है। तो फाइनल स्टेज उनका क्या होता है? जब वो पूरे कार्टन में पैक हो जाते हैं, दैट इज द कर्मेशन स्टेज। जब ये पूरा उठ के वो उठा के, अब जब ये लोग इसमें आ गए कार्टन में, बस अब ये शॉपकीपर जा सकता है अपने में। है ना, ये अपना फाइनल स्टेज हो गया है ना। जो डिलीवर, देखो ये फाइनल स्टेज है डिलीवरी वाला, करेक्ट। तो ऐसे ही स्ट्रीम्स होती है। स्ट्रीम्स में क्या होता है, बस हमने को उतना ही काफी था। तो ये अपना इनपुट है। ये अपना इनपुट क्या है? कलेक्शन, ठीक है। कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, उसको हम डाल देते हैं स्ट्रीम में। ठीक है। तो स्ट्रीम के अंदर तीन बड़े बड़े ऑपरेशन है। पहला है इनिशियलाइजेशन ऑपरेशन। पहला क्या है? तो कलेक्शन को स्ट्रीम में कन्वर्ट करना, उसको बोलते हैं इनिशियलाइजेशन ऑपरेशन। क्या बोलते हैं उसको? तो उसके लिए एक फंक्शन है डॉट स्ट्रीम। क्या फंक्शन है उसके लिए? डॉट स्ट्रीम। आप फंक्शन कॉल करोगे तो क्या हो जाएगा वो? तो जैसे अपना अभी जो कलेक्शन है, अपन ने जब उसको फेच कर लिया इधर, तो कौन से इसमें आ गया वो? सारा डेटा किसके अंदर है? एम्प्लॉयज। इस एम्प्लॉयज को मुझे स्ट्रीम्स में कन्वर्ट करना है, तो मुझे एक फंक्शन कॉल करना पड़ेगा, क्या? डॉट स्ट्रीम। ये हमारा क्या हो गया? तो ये लगेगा हमेशा कलेक्शन क्लास के ऑब्जेक्ट पे। स्ट्रीम बन गया। फिर आप जितने चाहो उतने इंटरमीडिएट ऑपरेशंस कर सकते हो। ठीक है। तो हर इंटरमीडिएट ऑपरेशन आपको एक नया स्ट्रीम देगा। क्या देगा? तो आपने जब स्ट्रीम लगाया तो कितने ऑब्जेक्ट्स थे आपके पास? 12 ऑब्जेक्ट्स थे। तो वो 12 ऑब्जेक्ट का स्ट्रीम था, राइट। फिर जब आपने बोला कि मुझे चाहिए आईटी डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज, तो ये गुजरेगा फिल्टर स्ट्रीम से। किससे गुजरेगा? फिल्टर एक मेथड है, फिल्टर ऑपरेशन से। किससे गुजरेगा ये? फिल्टर ऑपरेशन से। किससे गुजरेगा? ठीक है, ये सब मैं तुमको दे रहा हूँ, डायग्राम दे रहा हूँ बस। ठीक है, इसका कोई कोड से संबंध नहीं है।
तो फिल्टर ऑपरेशन से गुजरा, तो फिल्टर उसने किस पे किया उसने? तो अब वो स्ट्रीम जो 12 की थी वो कितने की हो गई अभी? चार, 4 की हो गई। अब यहां से अपने को चाहिए सारे के सारे नाम। तो वो एक देगा जो सिर्फ नाम निकाल के देगा, सिर्फ क्या देगा वो? तो ये 4 ऑब्जेक्ट्स थे, 4 कह के थे ये। 4, इसके अंदर 4 क्या है? ऑब्जेक्ट्स है ना। शुरू वाले में 12 क्या थे? शुरू वाले में 12 ऑब्जेक्ट्स थे, राइट? ऐसे ब्ला 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 12 थे। अब इसमें कितने आ गए फिल्टर होने के बाद में आईटी वाले के? और वो चार चार अभी भी ऑब्जेक्ट्स ही है, 4 अभी भी क्या है? फिर मैं एक और गुजारूंगा ऑपरेशन से जो मुझे उनके सिर्फ नाम निकाल के देगा। तो मुझे एक और ऑपरेशन क्या आउटपुट क्या आएगा? 4 सिर्फ नाम आएंगे। तो अभी वो क्या है? तो अभी तक सिर्फ स्ट्रीम ही चल रहा है, ठीक है ना। और स्ट्रीम का एंड होना चाहिए टर्मिनल ऑपरेशन पे। किस पे होना चाहिए खत्म? ये ऑपरेशन बहुत लेजी है। तुमने देखा होगा, अगर आपने कोई एम्प्लॉय, कोई पेंटर को लेके आए या कोई है ना कारपेंटर को लेके आए नाके से काम करने घर पे, अगर आप बाहर चले गए तो क्या करते बेटा? टाइम पास करते बैठता हो, है ना। फोन पे बात कर रहा है, चाय पीने जा रहा है। तो वो लेजी रहता है, लेजी। तो स्ट्रीम्स ये जितने भी है ना, ये जितने भी ऑपरेशन है इंटरमीडिएट, ये तभी रन होंगे जब आप कोई ना कोई टर्मिनल ऑपरेशन रन करेंगे। जब तक आप कोई भी टर्मिनल ऑपरेशन नहीं देंगे, तब तक इंटरमीडिएट स्ट्रीम्स ट्रिगर नहीं होंगे। सो व्हेन आर द इंटरमीडिएट ऑपरेशंस ट्रिगर्ड? जब तक आप कोई ना कोई, आपको एंड में कोई ना कोई टर्मिनल ऑपरेशन आपको देना है कंपलसरी। अगर आप कोई टर्मिनल ऑपरेशन नहीं दोगे, आपका स्ट्रीम क्या आउटपुट आएगा ही नहीं। आपने जितने मर्जी ये दे दो इनिशियलाइजेशन, जितने मर्जी दे दो इंटरमीडिएट, बट जब तक आप कोई ना कोई एक आपको देना पड़ेगा टर्मिनल ऑपरेशन, वो टर्मिनल ऑपरेशन सब ट्रिगर कर देगा। वो अपना इग्निशन रहेगा, ठीक है। जैसे अपने फटाके होते हैं ना, 10 फटाके हैं अगर, तो अपने को एक ना एक को इग्नाइट करना पड़ेगा, है ना। तो वो इग्नाइट करता है टर्मिनल ऑपरेशन। जब तक आप कोई ना कोई ये नहीं दोगे, तब तक आप नहीं कर सकते। समझ में आया? तो ये क्या करता है इनिशियलाइजेशन ऑपरेशन? आपके स्ट्रीम जो कलेक्शन ऑब्जेक्ट को क्या कर देता है, स्ट्रीम में कन्वर्ट कर देता, ताकि अभी वो सीक्वेंसली एक एक करके आए, है ना। वो 10,000 बॉटल्स थे ना जो आ रहे थे एक साथ, फिर एक कन्वेयर है जो उनको होता है कि लाइन में आ जाओ, क्या आ जाओ। तो वो लाइन में आने का जो कन्वेयर है वो है इनिशियलाइजेशन। अब लाइन में आने के बाद क्या करो? पहला स्ट्रीम क्या कर रहा है? लेबल लगा रहा है। फिर उसने लेबल लगा के, तो यहाँ से बॉटल है ना, यहाँ से भी क्या है, लाइन में क्या रहे, बॉटल जा रहे हैं ना, बॉटल जा रहे हैं। फिर वो स्ट्रीम ने क्या करके लेबल लगा के, उसका आउटपुट भी तो बॉटल ही है ना। तो इंटरमीडिएट ऑपरेशन का आउटपुट भी स्ट्रीम ही रहेगा, ठीक है। तो उसने लेबल लगा के दूसरे वाले को दिया, उसने फिलिंग करा, तो उसने भी क्या दिया, फिल्ड बॉटल। तो उसने दिया लेबल्ड बॉटल, इसने दिया फिल्ड बॉटल। इसने क्या दिया फिर? कैप्ड बॉटल, है ना। अब आप जितने मर्जी लेबल लगाओ, जितने मर्जी फिल करो, जितने मर्जी कैप करो, जब तक आप उसको बॉक्स बना के ट्रक में डालेंगे नहीं, फायदा है क्या कुछ उसका? तो ये जितना हमने खर्चा किया है बॉटल लगाने में, कैप लगाने में, फिल करने में, उसका पैसा कब मिलेगा अपने को? जब हम लोग उसको बेचेंगे ना, जब उसको पैक करके जब कस्टमर को लेंगे, तो विल कस्टमर टेक द लेबल्ड बॉटल ओनली? विल ही टेक द फिल्ड बॉटल ओनली? विल ही टेक द कैप बॉटल ओनली? ही वांट द पैक्ड बॉटल, है ना, पूरा कार्टन के साथ। तो लास्ट में आता है एक टर्मिनल ऑपरेशन, और वो अपने को आउटपुट देता है। समझ में आ रहा है? तो इसमें बहुत सारे ऑपरेशन है जो मैंने कैटेगराइज किया है, ठीक है। तो ये स्ट्रीम, ठीक है ना, स्ट्रीम, एम टी, ऑफ, ये किसके मेथड्स है? ये
और ये एक स्ट्रीम सिर्फ एक बार में काम करती है। ठीक है, ये यूज एंड थ्रो डिस्पोजेबल जैसा रहता है ये। ओके, फिर अभी मुझे ये सारे क्या है, इंटरमीडिएट ऑपरेशंस। तो इनका इनका आउटपुट क्या रहेगा? इनका आउटपुट स्ट्रीम ही रहेगा। और ये हमारे लास्ट में टर्मिनल ऑपरेटर है। ये आप जो चाहो वो मर्जी से आप ले सकते हो आउटपुट। तो अभी इस केस में आउटपुट क्या है? लिस्ट भाई, अरे अरे भूल जाओ सर, अभी कलेक्शन पे आ जाओ। लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग। तो मैंने इनपुट क्या दिया था? मैंने स्ट्रीम किस पे लगाई थी? मैंने स्ट्रीम लगाई थी लिस्ट ऑफ एम्प्लॉइज पे। किस पे लगाई थी? और इस स्ट्रीम ने मेरे को आउटपुट क्या दिया? लिस्ट ऑफ। समझा? और ये ऐसे फट 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 एक लाइन में सारा काम करके दे देता है। तो ट्राई करते हैं। ठीक है, अभी देखो ये थोड़ा थियरी है उसका। ये इनपुट है। वी कैन चेन एनी नंबर ऑफ इंटरमीडिएट ऑपरेशंस नोन एज। तो ये हो गया स्ट्रीम पाइपलाइन। क्या हो गया ये? तो इंटरमीडिएट ऑपरेशन के कोई कैद है क्या कि आप एक या दो लगा सकते? उसने पहले लेबल लगाया, लेबल लगा के तुमने देखा उसने उसको लेजर से स्कैन किया कि बॉटल में कोई इम्प्योरिटी तो है क्या नहीं। फिर लेबर बॉटल को फिल किया। फिल करने के बाद बॉटल को वॉश किया। वॉश करने के बाद कैप लगाया। कैप लगाने के बाद और क्लीन किया। तो 5-7 प्रोसेस से गुजरी वो बॉटल, है ना? तो इंटरमीडिएट बहुत सारे हो सकते हैं। वी कैन चेंज इन नंबर ऑफ इंटरमीडिएट ऑपरेशन। सो एक ऑपरेशन, दूसरा, तीसरा, इसका बनता है चेन। सो बोलते हैं स्ट्रीम पाइपलाइन, है ना? फिर तो आई एम कॉलिंग द इंटरमीडिएट ऑपरेशन शॉर्टकट एज IO। व्हाट एम आई कॉलिंग इट एज? IO। ईच IO विल रिटर्न अ न्यू स्ट्रीम। क्या करेगी वो? उसका आउटपुट एक स्ट्रीम ही होगा ना। ये जो स्ट्रीम थी ये 12 एम्प्लॉयज की स्ट्रीम थी। इसने क्या कर दिया उसको? 4 एम्प्लॉय की एक स्ट्रीम में कन्वर्ट कर दिया। तो एक इंटरमीडिएट ऑपरेशन क्या करेगा? स्ट्रीम इनपुट लेगा और स्ट्रीम आउटपुट देगा। उसका इनपुट भी स्ट्रीम है, आउटपुट भी स्ट्रीम है। ठीक है। ईच इनपुट इन ईच इंटरमीडिएट ऑपरेशन इज अप्लाइड ओनली वंस, ओनली वंस। वो बॉटल एक बार ही कैप लग एक बार ही उसको लेबल लगेगा, एक बार ही कैप लगेगा, एक बार ही फिल होगी, एक बार ही क्लीन होगी। सब उस पर एक एक बार होगा। ठीक है ना? आप इटरेट नहीं कर सकते उसके अंदर कि स्ट्रीम के अंदर ही घुमा रहे हैं। एक बार उस पर काम। एक देखो 12 ऑब्जेक्ट आ गए। 12 को फर्स्ट टास्क हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। वो चले गए इधर। अब वो 4 आ गए, 4 पे 1 2 3 4 आगे बढ़ गए। तो ये हर टास्क कितने बार होगा हर ऑब्जेक्ट पे? 1। और आयो क्या लिखा है? IO आर लेजी, दे आर एग्जीक्यूटेड ओनली वेन अ। अगर आपने 3-4 IO बनाए और टर्मिनल ऑपरेटर नहीं बनाया तो आउटपुट आएगा क्या? आउटपुट नहीं आएगा। ठीक है। ओके। वी कैन बाईपास द IO एंड डायरेक्टली अप्लाई TE। टी बोले तो टर्मिनल ऑपरेशन। अच्छा, रिटन TO ओवर देयर। वी कैन डायरेक्टली अप्लाई व्हाट? तो टर्मिनल ऑपरेशन। तो ये प्रिंटिंग प्रिंटिंग का काम कौन करता है? तो प्रिंटिंग के लिए फंक्शन दे देखो इधर। ये जो है ना फॉर ईच, ये सब प्रिंटिंग के काम करते हैं। तो अगर मैं बोलूं मुझे सारे एम्प्लॉयज के नाम प्रिंट करो, क्या करो? तो डायरेक्टली इनिशियलाइजेशन और डायरेक्टली टर्मिनल, बीच में कुछ है ना, फिल्टर कुछ कर नहीं रहा ना हम लोग। तो डायरेक्टली क्या कर रहे हैं? इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन और इसका डायरेक्ट क्या कर रहे हैं? टर्मिनल कर रहे हैं। ठीक है। बीच में कुछ है ही नहीं। तो हम उसको बाईपास स्किप भी कर सकते हैं। और यहाँ पर क्या लिखा है टर्मिनल का? ओनली ऑन अ स्ट्रीम। एक स्ट्रीम पे कितने लगे टर्मिनल ऑपरेटर, टर्मिनल ऑपरेशन? और फिर वो आपको आउटपुट दे देगा। समझ में आया? तो अब ये टास्क को थोड़ा सा स्ट्रीमिंग से देखते हैं। ठीक है। तो अभी देखो, अब ये फंक्शनल प्रोग्रामिंग देखो क्या फर्क पड़ता है इसके अंदर।
ठीक है। अब पहले क्या करना है अपने को? बोलो भाई। यस, तो ओके, टास्क क्या है, पहले टास्क ले लो। चलो मैं पहले बोलता हूँ डिस्प्ले ऑल नेम्स। क्या बोल रहा हूँ डायरेक्टली, मैं क्या बोल रहा हूँ? तो मुझे कहीं स्टोर करना है, डायरेक्ट डिस्प्ले करना है। देखो, एक तो क्वेश्चन ये है डिस्प्ले द नेम्स ऑफ ऑल एम्प्लॉयज है, और दूसरा क्वेश्चन हो सकता है कि स्टोर द नेम्स ऑफ ऑल एम्प्लॉयज इन अ लिस्ट। ठीक है, स्टोर द नेम्स ऑफ ऑल एम्प्लॉयज इन अ लिस्ट एंड डिस्प्ले। ऊपर तो ऊपर अपन ने क्या किया, अपन ने ये किया ऊपर, है ना? ऊपर क्या किया अपन ने? है ना? तो अभी आप चाहो तो डायरेक्ट स्टोर भी कर सकते हो, डायरेक्ट आपके ऊपर भी है। ठीक है, तो अगर आपको बोलता है डायरेक्टली सिर्फ डिस्प्ले करो, तो आप डायरेक्टली यहाँ पर बोल सकते थे प्रिंट एलन, है ना? ये जो काम था डायरेक्ट यहाँ कर लेते थे ना, अगर सिर्फ डिस्प्ले करने बोलते तो अभी लेट्स ट्राई टू डू दिस वन। तो इसका आउटपुट क्या आने वाला है, आउट इसका? लेट्स ट्राई टू डू लाइक दिस। शो द नेम्स ऑफ ऑल एम्प्लॉयज इन लिस्ट। आउटपुट क्या आएगा? लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग आएगा। ठीक है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं। आउटपुट क्या आएगा? लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग आएगा। ठीक है, क्या बोलेंगे? एम्प्लॉय नेम्स वन, ताकि ऊपर रहेगा एम्प्लॉय नेम्स, तो इधर आ जाएगा। ठीक है, पहले क्या करने का, जो अपना कलेक्शन ऑब्जेक्ट है उस पर क्या लगाएंगे? तो हर एक का एक फंक्शन है स्ट्रीम, दिख रहा है? आ गया। अब स्ट्रीम के बाद में आपको वो टास्क जो आपको आउटपुट चाहिए, वो फिल्टर्ड चाहिए कि हर एक का चाहिए? देखो इसमें है ना, दो बहुत कॉमन फंक्शन है। फिल्टर्ड है ना, हाँ, तो देखो इसमें हर एक, इसमें दो, एक बहुत कॉमन मेथड्स है जो आपको समझ में आ जाना चाहिए। देखो, ये मेरा एक एरे है या कलेक्शन है। कितने साइज का है ये? साइज क्या है? हाँ, साइज 5 है। अगर मैं मैप लगाता हूँ, क्या लगाता हूँ? मैप। तो मुझे जो आउटपुट आएगा वो इक्वल साइज का ही आएगा, जिस पे मैं मैप लगा रहा हूँ। तो जिस ऑब्जेक्ट पे मैं मैप लगा रहा हूँ कलेक्शन पे, मेरा आउटपुट भी क्या रहेगा? इक्वल साइज ही रहेगा। तो अगर मेरा इनपुट 5 साइज का है मैप में, तो मेरा आउटपुट भी कितने साइज का होगा? गारंटीड रहेगा, आउटपुट भी उसी साइज का ही रहेगा। जिस साइज का इनपुट उस साइज का आउटपुट, अगर आपको मैप करना है। तो अगर मैंने बोला डिस्प्ले ऑल द नेम्स, क्या बोला मैंने? या स्टोर ऑल द नेम्स, क्या बोला मैंने? स्टोर ऑल द नेम्स अगर मैंने बोला, तो मैं किस पे लगा रहा हूं स्ट्रीम्स? 12 वाले एम्प्लॉय, जो एम्प्लॉय लिस्ट है उसमें कितने एम्प्लॉयज है? कितने एम्प्लॉयज उसमें? 12 एम्प्लॉयज है ना। और जो मेरा रिजल्टेंट है, जो लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग है जिसमें नाम आने, सारे नाम आने वाले, वो भी फिर किस साइज का होगा? कितने साइज का होगा वो भी? 12 साइज का होगा ना। तो जो आपका इनपुट का साइज है वही आपका आउटपुट का साइज चाहिए आपको। तो उसके लिए बेस्ट इंटरमीडिएट ऑपरेशन मैप है। क्या है? मैप क्या है? इंटरमीडिएट ऑपरेशन, दिख रहा है? नहीं, बेस्ट इन विच यूज केस? मैप यू यूज इन विच यूज केस? व्हेन द, यस। और अगर मैं बोलूं स्टोर ऑल नेम्स ऑफ आईटी डिपार्टमेंट, स्टोर ऑल नेम्स ऑफ आईटी डिपार्टमेंट, तो अब ठीक है, ऑल ईएमपी नेम्स। तो अब इनपुट कितने साइज का है?
और आउटपुट कितने साइज का है? तो विल आई यूज मैप ओवर हियर? हियर आई विल यूज फिल्टर। हियर व्हाट विल आई यूज? फिल्टर। तो फिल्टर भी एक इंटरमीडिएट ऑपरेशन है। समझ में आ रहा है, दिख रहा है? ठीक है। फिल्टर जो है ये लेता है प्रेडिकेट को एज अ इनपुट। क्या लेता है? ये सब है फंक्शनल इंटरफेस। ये सब क्या है? प्रेडिकेट ऐसा इंटरफेस है, यानी ऐसा है जो सिर्फ बूलियन रिटर्न करता है। क्या करता है? रिटर्न। तो जो कंडीशन ट्रू करेगा उसको रिटर्न कर देगा वो। तो फिल्टर क्या करेगा? कंडीशन चेक करेगा ना, और जिसने भी ट्रू रिटर्न किया उसको रिटर्न कर देगा। जहां भी कंडीशन ट्रू हुई वो उसको रिटर्न कर देगा। तो जब इनपुट साइज 12 है और आउटपुट साइज 4 है तो बेस्ट ऑप्शन क्या है? तो इफ यू वांट टू फिल्टर आउट ऑन अ कंडीशन then use filter, and if you want to do on all then do what? समझ में आ रहा है? तो यहां पर मैं क्या करूंगा? यहां पर क्वेश्चन क्या बोला है? तो फिर क्या यूज करने का? तो फिल्टर यूज करने का, मैप यूज करने का? आपका क्या बोलता है ज्ञान? हाँ। अब ये मैप में ना ये सब लैम्बडा एक्सप्रेशन है अभी सब। क्या ये? तो डॉट मैप आ गया, दिख रहा है? अब डॉट मैप जो है ना ये लैम्बडा एक्सप्रेशन की तरह काम करेगा। ठीक है, अपना फॉर है ना, फॉर ईच लूप है ना, फॉर ईच लूप ये वैसा काम करेगा। तो अब एक एक एम्प्लॉय को ले लेगा इस वेरिएबल में। ठीक है। अब उस पे करना क्या है अपने को? लैम्बडा एक्सप्रेशन की तरह क्या निकालना है उसका? ओके, एम्प्लॉय ना ये एम्प्लॉय है। देखिए एम्प्लॉय आ गया ना। तो क्या निकालना है उसका अपने को? सिर्फ गेट गेट। तो अभी कितने नेम मिल गए मुझे? उसने तो अभी देखो, अभी को पहला पहला स्ट्रीम आया। कौन आया? स्ट्रीम के अंदर ये पहला पहला आया। ठीक है, पहला ऑब्जेक्ट आ गया ना। तो उसने क्या किया? उसका सिर्फ क्या निकाल लिया उसने? उसका क्या निकाल लिया उसने? इसका सिर्फ नेम आया। फिर दूसरा आया, दूसरा का क्या निकाल लिया उसने? सिर्फ नेम। तो ये क्या कर रहा है मैप? जितने 12 है 12 के नेम निकाल लिया उसने, है ना। तो अभी इसके पास 12 नाम्स हो गए। ठीक है। अब उसका करना क्या है अपने को? 12 नाम का। तो फिर अपने को इंटरमीडिएट अपना हो गया। इंटरमीडिएट तो है, देखिए ये भी हो गया। ठीक है, ये वाला भी हो गया, इनिशिएशन भी हो गया, इंटरमीडिएट भी कर दिया आपने। अब आउटपुट, विल आई गेट द आउटपुट इफ आई गिव अ सेमीकोलन ओवर हियर? विल आई गेट द आउटपुट इफ आई गिव अ सेमीकोलन? नो। तो फिर हमको चाहिए कोई टर्मिनल ऑपरेशन। तो हम लोग उसको जमा कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? तो जमा करने के लिए कलेक्ट करके एक टर्मिनल ऑपरेशन है। क्या दिख रहा है? कलेक्ट, सेकंड लास्ट। तो उसको हम कर रहे हैं कलेक्ट। ठीक है। और कलेक्ट जैसे अपने कलेक्शन है ना, कलेक्शन एक याद है, कलेक्शन कैपिटल एस, कैपिटल सी एन एस। वैसे कलेक्टर्स भी है। क्या है? तो हम लोग उसको किस में डाल रहे हैं उसको? तो कलेक्ट नहीं, तो कलेक्टर्स डॉट टू लिस्ट, कलेक्टर्स डॉट, बस हो गया। तो ये पूरा का पूरा आपको एम्प्लॉय नेम दे देगा। आपको चाहिए तो आप उसको सिस आउट कर लो। ईएमपी नेम इसको रन करो इसको। तो ऊपर का कमेंट कर रहा हूँ मैं। ठीक है, ये लगेगा अपने को ना, ये तो लगने वाला है। डेटा तो वहां से आ रहा है। अब देखो ये मुझे सारे के सारे एम्प्लॉय नेम्स लिस्ट में दे देगा। दिख रहा है?
अब अगर मुझे चाहिए थे, ओके, अब मुझे इसको डिस्प्ले करना है, क्या करना है? डिस्प्ले अगर आपको इसको करना है, तो एक टर्मिनल ऑपरेटर है इधर, फॉर ईच, क्या है? तो आप वो लगा सकते हो अगर आपको कलेक्ट नहीं लगाना है। ठीक है, अगर आपको डिस्प्ले करना है जैसे ये वाला था। ठीक है, तो डिस्प्ले आपको करना है ना, तो विल यू नीड एनी एलएचएस? आप उसको स्टोर नहीं कर रहे किधर ना। तो आपने देखो, तो हमेशा हर टाइम पे नया स्ट्रीम लगेगा, अभी हर टाइम पे नया स्ट्रीम। तो नया स्ट्रीम बनाया, सारे एम्प्लॉयज को मैप कर दिया, फिर आपने क्या कर दिया, यू नीड वन टर्मिनल ऑपरेटर, तो क्या करेंगे, डॉट फॉर ईच। और ये क्या कर रहा है, फॉर ईच क्या कर रहा है, ये फॉर ईच जो भी हमने डेटा लाया है उसके बाद उसको डिस्प्ले कर रहा है। क्या कर रहा है उसको वो, तो डिस्प्ले कर रहा है। तो यहाँ पर हम लोग क्या, डिस्प्ले करने के लिए हम लोग ये यूज कर सकते हैं, सिस्टम डॉट आउट, और मेथड रेफरेंसिंग यूज करके हम लोग प्रिंट एल कर सकते हैं। तो ये ओके, एलएचएस कुछ नहीं रहेगा ना गाइस, अपन को रिटर्न नहीं करे ना, तो एलएचएस रहेगा नहीं। तो आप डायरेक्टली ऐसा, एम्प्लॉय से हमने स्ट्रीम लगाया। ठीक है, उस टीम ने क्या किया, 12 लोग थे, तो मैप लगाया कि मुझे आउटपुट 12 चाहिए। तो मैप लगाया, मैप में से क्या क्या निकाल लिया, सिर्फ नेम निकाल लिया। हाँ, नेम आ गए, उसको क्या कर दिया मैंने, सिर्फ डिस्प्ले करना है। तो अगर आपको कुछ रिटर्न नहीं करना है तो फॉर ईच यूज करो। और फिर क्या कर दिया, ये फंक्शन कॉल कर दिया। अब इसको कंट्रोल एस करते हैं और रन करते हैं, तो आपको दिख रहा है, ये भी आ गया ना इधर। इसको कमेंट कर देते हैं। तो अभी आपको सिर्फ क्या दिख रहा है, आपका नाम दिखा दिया उसने। अरे समझ रहे, नहीं समझ रहे? ओके, अब मुझे सारे नाम दिखाने हैं सिर्फ आईटी डिपार्टमेंट के, तो जो हमने ये क्वेश्चन किया था शुरू में, ये जो इसका आउटपुट था ना, डिस्प्ले नेम ऑफ आईटी डिपार्टमेंट था ना ये। तो अब क्या करेंगे बोलो? यस, बस फिल्टर यूज कर लेंगे, बस खलास, डिस्प्ले द नेम्स ऑफ ऑल एम्प्लॉयज वर्किंग इन आईटी डिपार्टमेंट। तो मैप नहीं करेंगे, क्या कर देंगे अभी, फिल्टर कर लेंगे। ठीक है, और फिल्टर क्या देता है आपको, तो फिल्टर ऑलवेज रिटर्न्स अ ट्रू और फॉल्स, है ना। तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, एम्प्लॉय डॉट गेट नेम। तो क्या अपना लॉजिक क्या था डिपार्टमेंट को फिल्टर करने वाला, कहा गया अपना ये कंडीशन ना। तो फिर वो लगा देंगे अपन, फिल्टर डॉट गेट नेम एम्प्लॉय। देखिए एम्प्लॉय इसमें आ गया, और कंडीशन क्या लगा रहा हूँ मैं, कंडीशन क्या लगा रहा हूँ उस एम्प्लॉय का, कि मुझे चेक करो कंडीशन कि उस एम्प्लॉय का आईटी डिपार्टमेंट है क्या, है तो उसको रिटर्न कर देगा, हम उसको डिस्प्ले कर देंगे। ठीक है, तो ये भी कमेंट करता हूँ मैं, ताकि आउटपुट बराबर आ जाए अपना। तो सिर्फ 4 लोगों के नाम आ जाएंगे। ठीक है, ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ही आ गया। अभी देखो ये 3 लोगों, एक एक तो नल था ना, तो उसने मुझे क्या दिया, 3 की स्ट्रीम दे दिया ना, तो उसने वो ऑब्जेक्ट डिस्प्ले कर दिए। पर मुझे डिस्प्ले करने थे इनके नाम। तो अभी इस पे हम लोग कर देंगे मेथड चेनिंग, तो इस पे मैप लगा देंगे। तो मुझे इसमें से सिर्फ नाम चाहिए ना। तो जो इसने मुझे 3 ऑब्जेक्ट रन किए, मैंने उन तीनों का, तो इसने मुझे कितने ऑब्जेक्ट दिए, 12 दिए, ठीक है ना। इसने कितने कर दिए 12 में से, अब मुझे उन तीनों के नाम दिखाने हैं ना। तो जो इनपुट 3 का था, मुझे आउटपुट भी 3 ही चाहिए, राइट। तो इसने क्या करा, मैप ने उसमें से क्या निकाल लिया, उनका नेम। अभी रन करेंगे तो आउटपुट क्या आएगा, उन तीनों के सिर्फ नाम आएंगे। अरे बात समझ में आ रही तुम लोगों को, ऐसा रहा।
ओके, अब ये मुझे लिस्ट में स्टोर करने थे, तो अगर मेरा यूज केस होता कि ये होता, स्टोर द नेम्स ऑफ ऑल एम्प्लॉयज वर्किंग इन आईटी डिपार्टमेंट इन लिस्ट, स्टोर द नेम्स ऑफ ऑल एम्प्लॉयज वर्किंग इन आईटी डिपार्टमेंट इन अ लिस्ट। तो अभी क्या करेंगे? नाउ विल नीड एलएचएस, नाउ विल नीड एलएचएस, यस और नो? So will I use for each now? Will I, and list of what? Now, but will I use, now will I use for each now? तो फिर क्या यूज करेंगे? डॉट कलेक्ट और कलेक्टर्स डॉट, कलेक्टर्स डॉट टू स्ट्रिंग टू लिस्ट कलेक्टर्स। तो ये टर्मिनल ऑपरेटर लगाना पड़ेगा कंपलसरी, वरना ये काम नहीं करेगा, ठीक है? लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग नाम दे दो कुछ उसका, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग का नाम दे दो ना कोई, आईटी एम्प्लॉयज टू, ठीक है? और फिर क्या कर दो, उसको डिस्प्ले, तो इसको फिर डिस्प्ले करना है तो क्या करेंगे फिर? तो अगर इसको डिस्प्ले करना है आपको, तो इस पे भी फिर आप कर सकते, अगर देखो मैं यहाँ कर दूँ डायरेक्ट सिस आउट, डायरेक्ट डिस्प्ले हो जाएगा ना, जो अपने को आता था डिस्प्ले डायरेक्ट, वो स्क्वायर ब्रैकेट के साथ है ना, ये ऑन पर लिस्ट डिस्प्ले कर रहा है ना, इसके लिए तुम्हारा स्क्वायर ब्रैकेट के साथ आ जाएगा, है ना? पर मुझे चाहिए अभी अलग अलग, जैसे इसका आ रहा था ना आउटपुट अलग अलग लाइन पे, तो क्या करेंगे फिर अभी? तो फिर क्या करेंगे? हाँ, यस, वेरी गुड, वेरी गुड। तो डायरेक्टली इसको ले लेंगे, इसको पहले करेंगे, कन्वर्ट, किस में करेंगे कन्वर्ट? स्ट्रीम में। और डायरेक्टली क्या लगा देंगे? टर्मिनल ऑपरेटर। डायरेक्टली क्या लगा देंगे? टर्मिनल ऑपरेटर लगा देंगे, फॉर ईच लगा देंगे। करना क्या है उसमें अपने को? उसको सिस आउट, और तो इसमें हम लोग ये करेंगे मेथड रेफरेंसेस, और कौन सा फंक्शन यूज कर रहे हैं उसका अपन? समझ में आ रहा है ये? तो अब ये कमेंट कर दो अगर मैं, तो देखो आउटपुट कैसे आएगा, यस और नो? है क्या नहीं इंटरेस्टिंग?